جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ ودیمہ آپ کے پاس کیسے پہنچی، اور نہ ہی میرے آدمیوں میں سے کسی نے اس کو کچھ بتایا ہے۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے صاف صاف کہا ہے کہ تمہارے بندوں نے اسے بتایا ہے، تو پھر تم میں سے کون اسے یہ سب کچھ بتا سکتا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم میں سے کسی نے یہ سب کچھ نہیں بتایا، اور اب میں ویسے بھی وہ گھر چھوڑ کر آ چکی ہوں، وہ تو وہاں پر آیا بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں پر نہیں ملے ہوں گے، پولیس کو بھی لے کر آیا ہوگا تو اسے وہاں پر یتیم بچے ہی ملے ہوں گے، ہم تو وہاں پر گئے ہی نہیں، ہم کب سے گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا تو ایڈریس بھی اس کو نہیں پتا۔ وہ یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا چلا کہ ان سب میں تمہارا ہاتھ ہو تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب یہ بات نصیبہ اپنے بندے سے پوچھتی ہے کہ یہ بات مرزا کو کیسے پتا چلی کہ نصیبہ اس کے پاس ہے، یہاں پر تو کسی نے بھی اسے نہیں بتایا، تو پھر اس کو کیسے یہ سب کچھ پتا چلا؟ وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ اپنے اس بندے سے پوچھو، کہیں اس نے تو اسے کچھ نہیں بتایا مار کھانے کے دوران۔ جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ نہیں، اسے تو پہلے ہی حقیقت کا پتا چل گیا تھا، اسے اور کون بتا سکتا ہے؟ تمہاری نازوں نے بتایا ہوگا، ویسے بھی ودیمہ کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کی پکی سہیلی تھی، ظاہر سی بات ہے، اور مجھ سے ملی بھی وہی تھی۔ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہاں اس نے ہی بتایا ہوگا۔ وہ اسے پوچھنے کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم کہاں اس سے پوچھ سکو گی، اپنے اس نوکر کو بھیجو، تم نے اس کو کس لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کو اتنا مار کر گیا ہے وہ سالار، اس کو بھیجو، ہو سکتا ہے کہ اپنی بھڑاس اس پر نکال لے۔ جس پر نصیبن اسے اشارہ کرتی ہے کہ جاؤ اور اس کو جا کر مارو۔ وہ جیسے ہی نصیبوں کے پاس پہنچتا ہے، نصیبہ اس کو کمرے میں دے کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی بغیر کوئی بات سنے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے اتنا مارتا ہے کہ اس کی بازو تک توڑ دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر مرے ہوئے مردوں کی طرح لیٹی ہوتی ہے۔ جب شمشیر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری یہ حالت دیکھ کر، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت ترس آ رہا ہے۔ جس پر وہ لڑکی ہنسنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو افسوس ہو گئی، تمہاری دلی خواہش جو پوری ہوئی ہے مجھے مار کر۔ جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ سرفراز سالار کو تم یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی یہاں سے ہو کر گئی ہے اور اس نے مرزا کو بیچ دی ہے، تمہاری بیوی؟ جس پر نصیبہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم اپنی الٹی غلطی گننی شروع کر دو، کیونکہ ایک ایسا انسان ضرور آئے گا جو تمہیں تمہاری اصل منزل تک پہنچائے گا، جو تمہاری اوقات ہے، تمہیں تمہارے اس حشر تک پہنچائے گا جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے، تمہاری روح تمہاری جسم کے اندر سے کھینچ کر نکالے گا، اور اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے آئے ہو، جب تمہارے ساتھ ہوگا تو اس کے کیا احساسات ہوں گے۔ شیر اسے کہتا ہے کہ ایسا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو شمشیر تک پہنچ کر اس کو نقصان پہنچا سکے، لیکن نصیبہ اسے کہتی ہے کہ ایسا انسان آئے گا، تم یقین رکھو کہ وہ انسان جب سالار مرزا سے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو مرزا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ فوراً نصیبن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، سالار کو کیسے پتا چلا کہ اس کی بیوی میرے پاس ہے؟ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ ودیمہ آپ کے پاس کیسے پہنچی، اور نہ ہی میرے آدمیوں میں سے کسی نے اس کو کچھ بتایا ہے۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے صاف صاف کہا ہے کہ تمہارے بندوں نے اسے بتایا ہے، تو پھر تم میں سے کون اسے یہ سب کچھ بتا سکتا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم میں سے کسی نے یہ سب کچھ نہیں بتایا، اور اب میں ویسے بھی وہ گھر چھوڑ کر آ چکی ہوں، وہ تو وہاں پر آیا بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں پر نہیں ملے ہوں گے، پولیس کو بھی لے کر آیا ہوگا تو اسے وہاں پر یتیم بچے ہی ملے ہوں گے، ہم تو وہاں پر گئے ہی نہیں، ہم کب سے گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا تو ایڈریس بھی اس کو نہیں پتا۔ وہ یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا چلا کہ ان سب میں تمہارا ہاتھ ہو تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب یہ بات نصیبہ اپنے بندے سے پوچھتی ہے کہ یہ بات مرزا کو کیسے پتا چلی کہ نصیبہ اس کے پاس ہے، یہاں پر تو کسی نے بھی اسے نہیں بتایا، تو پھر اس کو کیسے یہ سب کچھ پتا چلا؟ وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ اپنے اس بندے سے پوچھو، کہیں اس نے تو اسے کچھ نہیں بتایا مار کھانے کے دوران۔ جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ نہیں، اسے تو پہلے ہی حقیقت کا پتا چل گیا تھا، اسے اور کون بتا سکتا ہے؟ تمہاری نازوں نے بتایا ہوگا، ویسے بھی ودیمہ کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کی پکی سہیلی تھی، ظاہر سی بات ہے، اور مجھ سے ملی بھی وہی تھی۔ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہاں اس نے ہی بتایا ہوگا۔ وہ اسے پوچھنے کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم کہاں اس سے پوچھ سکو گی، اپنے اس نوکر کو بھیجو، تم نے اس کو کس لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کو اتنا مار کر گیا ہے وہ سالار، اس کو بھیجو، ہو سکتا ہے کہ اپنی بھڑاس اس پر نکال لے۔ جس پر نصیبن اسے اشارہ کرتی ہے کہ جاؤ اور اس کو جا کر مارو۔ وہ جیسے ہی نصیبوں کے پاس پہنچتا ہے، نصیبہ اس کو کمرے میں دے کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی بغیر کوئی بات سنے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے اتنا مارتا ہے کہ اس کی بازو تک توڑ دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر مرے ہوئے مردوں کی طرح لیٹی ہوتی ہے۔ جب شمشیر اس کے پاس جاتا
जाता है और उसकी हालत देख कर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देख कर, तुम्हें इस हालत में देख कर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबा उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसका नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबों से कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान। जब सालार मिर्जा से मिलकर वहां से चला जाता है तो मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। सलार मिर्जा उसे कहता है कि सच सच बताओ, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ, वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं, हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्जा उसे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्जा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, जो यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछा, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है, तुम्हारी नाजो ने बताया होगा, वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सलार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबों के पास पहुंचता है, वो नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबा उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसका नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबों से कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान। जब सालार मिर्जा से मिलकर वहां से चला जाता है तो मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। सलाम मिर्जा उसे कहता है कि सच सच बताओ, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ, वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं, हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्जा उसे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्जा को कैसे पता चली कि नसीबा
नसीबा उसके पास है, यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछा, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है, तुम्हारी नाज़ो ने बताया होगा। वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सलार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबों के पास पहुंचता है, नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है, और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सलार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबो से कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुँचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुँचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा, और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबो उसे कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान जब सालार मिर्ज़ा से मिलकर वहाँ से चला जाता है तो मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो फ़ौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। मिर्ज़ा उसे कहता है कि सच सच बताओ, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ, वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं, हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्ज़ा उसे कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्ज़ा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछा, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है, तुम्हारी नाज़ो ने बताया होगा। वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सलार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबों के पास पहुंचता है, नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है, और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सलार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबो उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो,
दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा, और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबों से कहती है कि ऐसा इंसान आएगा। तुम यकीन रखो कि वो इंसान जब सालार मिर्जा से मिलकर वहां से चला जाता है तो मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। सलार मिर्जा उसे कहता है कि सच सच बताओ। उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ। वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं। हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्जा उसे कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्जा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछो, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है। तुम्हारी नाजो ने बताया होगा, वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सलार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबों के पास पहुंचता है, नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है, और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्जा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबो से कहती है कि देखो, तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा, और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबों से कहती है कि ऐसा इंसान आएगा। तुम यकीन रखो कि वो इंसान जब सालार मिर्जा से मिलकर वहां से चला जाता है तो मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। सलार मिर्जा उसे कहता है कि सच सच बताओ। उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ। वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं। हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्जा से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्जा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछो, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है। तुम्हारी नाजो ने बताया होगा, वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर
उससे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सालार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबो के पास पहुंचता है, वो नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबो उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन नसीबो उसे कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान। जब सालार मिर्ज़ा से मिलकर वहाँ से चला जाता है तो मिर्ज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो फ़ौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। मिर्ज़ा उसे कहता है कि सच सच बताओ, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ, वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं, हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्ज़ा उसे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्ज़ा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, जो यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछा, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है, तुम्हारी नाज़ो ने बताया होगा। वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सालार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबो के पास पहुंचता है, नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबो उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन नसीबो उसे कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान
جب سالار مرزا سے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو مرزا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ فوراً نصیبن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، سالار کو کیسے پتا چلا کہ اس کی بیوی میرے پاس ہے؟ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ ودیمہ آپ کے پاس کیسے پہنچی، اور نہ ہی میرے آدمیوں میں سے کسی نے اس کو کچھ بتایا ہے۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، اس نے صاف صاف کہا ہے کہ تمہارے بندوں نے اسے بتایا ہے، تو پھر تم میں سے کون اسے یہ سب کچھ بتا سکتا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم میں سے کسی نے یہ سب کچھ نہیں بتایا، اور اب میں ویسے بھی وہ گھر چھوڑ کر آ چکی ہوں، وہ تو وہاں پر آیا بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں پر نہیں ملے ہوں گے، پولیس کو بھی لے کر آیا ہوگا تو اسے وہاں پر یتیم بچے ہی ملے ہوں گے، ہم تو وہاں پر گئے ہی نہیں، ہم کب سے گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا تو ایڈریس بھی اس کو نہیں پتا۔ وہ یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے۔ مرزا سے کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا چلا کہ ان سب میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب یہ بات نصیبہ اپنے بندے سے پوچھتی ہے کہ یہ بات مرزا کو کیسے پتا چلی کہ نصیبہ اس کے پاس ہے، یہاں پر تو کسی نے بھی اسے نہیں بتایا، تو پھر اس کو کیسے یہ سب کچھ پتا چلا؟ وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ اپنے اس بندے سے پوچھو، کہیں اس نے تو اسے کچھ نہیں بتایا مار کھانے کے دوران؟ جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ نہیں، اسے تو پہلے ہی حقیقت کا پتا چل گیا تھا، اسے اور کون بتا سکتا ہے؟ تمہاری نازوں نے بتایا ہوگا، ویسے بھی ودیمہ کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کی پکی سہیلی تھی، ظاہر سی بات ہے، اور مجھ سے ملی بھی وہی تھی۔ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہاں اس نے ہی بتایا ہوگا۔ وہ اسے پوچھنے کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم کہاں اس سے پوچھ سکو گی، اپنے اس نوکر کو بھیجو، تم نے اس کو کس لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ اس کو اتنا مار کر گیا ہے وہ سالار، اس کو بھیجو، ہو سکتا ہے کہ اپنی بھڑاس اس پر نکال لے۔ جس پر نصیبن اسے اشارہ کرتی ہے کہ جاؤ اور اس کو جا کر مارو۔ وہ جیسے ہی نصیبوں کے پاس پہنچتا ہے، نصیبہ اس کو کمرے میں دے کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی بغیر کوئی بات سنے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے اتنا مارتا ہے کہ اس کی بازو تک توڑ دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر مرے ہوئے مردوں کی طرح لیٹی ہوتی ہے۔ جب شمشیر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری یہ حالت دیکھ کر، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت ترس آ رہا ہے۔ جس پر وہ لڑکی ہنسنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو افسوس ہو گئی، تمہاری دلی خواہش جو پوری ہوئی ہے مجھے مار کر۔ جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ سرفراز سالار کو تم یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی یہاں سے ہو کر گئی ہے اور اس نے مرزا کو بیچ دی ہے، تمہاری بیوی؟ جس پر نصیبہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو، تم اپنی الٹی غلطی گننی شروع کر دو، کیونکہ ایک ایسا انسان ضرور آئے گا جو تمہیں تمہاری اصل منزل تک پہنچائے گا، جو تمہاری اوقات ہے، تمہیں تمہارے اس حشر تک پہنچائے گا جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے، تمہاری روح تمہاری جسم کے اندر سے کھینچ کر نکالے گا، اور اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے آئے ہو، جب تمہارے ساتھ ہوگا تو اس کے کیا احساسات ہوں گے۔ شیر اسے کہتا ہے کہ ایسا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو شمشیر تک پہنچ کر اس کو نقصان پہنچا سکے، لیکن نصیبہ اسے کہتی ہے کہ ایسا انسان آئے گا، تم یقین رکھو کہ وہ انسان جب سالار مرزا سے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو مرزا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ فوراً نصیبن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، سالار کو کیسے پتا چلا کہ اس کی بیوی میرے پاس ہے؟ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ ودیمہ آپ کے پاس کیسے پہنچی، اور نہ ہی میرے آدمیوں میں سے کسی نے اس کو کچھ بتایا ہے۔ مرزا اسے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، اس نے صاف صاف کہا ہے کہ تمہارے بندوں نے اسے بتایا ہے، تو پھر تم میں سے کون اسے یہ سب کچھ بتا سکتا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم میں سے کسی نے یہ سب کچھ نہیں بتایا، اور اب میں ویسے بھی وہ گھر چھوڑ کر آ چکی ہوں، وہ تو وہاں پر آیا بھی ہوگا تو ہم اسے وہاں پر نہیں ملے ہوں گے، پولیس کو بھی لے کر آیا ہوگا تو اسے وہاں پر یتیم بچے ہی ملے ہوں گے، ہم تو وہاں پر گئے ہی نہیں، ہم کب سے گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا تو ایڈریس بھی اس کو نہیں پتا۔ وہ یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے۔ مرزا سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلا کہ ان سب میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب یہ بات نصیبہ اپنے بندے سے پوچھتی ہے کہ یہ بات مرزا کو کیسے پتا چلی کہ نصیبہ اس کے پاس ہے، یہاں پر تو کسی نے بھی اسے نہیں بتایا، تو پھر اس کو کیسے یہ سب کچھ پتا چلا؟ وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ اپنے اس بندے سے پوچھو، کہیں اس نے تو اسے کچھ نہیں بتایا مار کھانے کے دوران؟ جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ نہیں، اسے تو پہلے ہی حقیقت کا پتا چل گیا تھا، اسے اور کون بتا سکتا ہے؟ تمہاری نازوں نے بتایا ہوگا، ویسے بھی ودیمہ کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کی پکی سہیلی تھی، ظاہر سی بات ہے، اور مجھ سے ملی بھی وہی تھی۔ جس پر نصیبن اسے کہتی ہے کہ ہاں اس نے ہی بتایا ہوگا۔ وہ اسے پوچھنے کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن شمشیر اسے کہتا ہے کہ تم کہاں اس سے پوچھ سکو گی، اپنے اس نوکر کو بھیجو، تم نے اس کو کس لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے؟ اس کو اتنا مار کر گیا ہے وہ سالار، اس کو بھیجو، ہو سکتا ہے کہ اپنی بھڑاس اس پر نکال لے۔ جس پر نصیبن اسے اشارہ کرتی ہے کہ جاؤ اور اس کو جا کر مارو۔ وہ جیسے ہی نصیبوں کے پاس پہنچتا ہے، نصیبہ اس کو کمرے میں دے کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی بغیر کوئی بات سنے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے اتنا مارتا ہے کہ اس کی بازو تک توڑ دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر مرے ہوئے مردوں کی طرح لیٹی ہوتی ہے۔ جب شمشیر اس کے پاس جاتا
जाता है और उसकी हालत देख कर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देख कर, तुम्हें इस हालत में देख कर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबा उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबा उसे कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान। जब सालार मिर्जा से मिलकर वहां से चला जाता है तो मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। सलार मिर्जा उसे कहता है कि सच सच बताओ, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ, वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं, हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्जा उसे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्जा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, जो यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछो, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है, तुम्हारी नाजो ने बताया होगा, वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सलार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबों के पास पहुंचता है, नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर नसीबा वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश जो पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सालार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबा उसे कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक पहुंचाएगा, जो तुम्हारी औकात है, तुम्हें तुम्हारे उस हशर तक पहुंचाएगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म के अंदर से खींच कर निकालेगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम जो दूसरों की बेटियों के साथ करते आए हो, जब तुम्हारे साथ होगा तो उसके क्या एहसास होंगे। शेर उसे कहता है कि ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शमशेर तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन नसीबा उसे कहती है कि ऐसा इंसान आएगा, तुम यकीन रखो कि वो इंसान। जब सालार मिर्जा से मिलकर वहां से चला जाता है तो मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फौरन नसीबन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, सालार को कैसे पता चला कि उसकी बीवी मेरे पास है। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हमने उसे कुछ नहीं बताया कि वदीमा आपके पास कैसे पहुंची, और ना ही मेरे आदमियों में से किसी ने उसको कुछ बताया है। मिर्जा उसे कहता है कि सच सच बताओ, उसने साफ साफ कहा है कि तुम्हारे बंदों ने उसे बताया है, तो फिर तुम में से कौन उसे ये सब कुछ बता सकता है। जिस पर वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, हम में से किसी ने ये सब कुछ नहीं बताया, और अब मैं वैसे भी
वो घर छोड़ कर आ चुकी हूँ, वो तो वहाँ पर आया भी होगा तो हम उसे वहाँ पर नहीं मिले होंगे, पुलिस को भी लेकर आया होगा तो उसे वहाँ पर यतीम बच्चे ही मिले होंगे, हम तो वहाँ पर गए ही नहीं। हम कब से घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर का तो एड्रेस भी उसको नहीं पता। वो ये कहकर कॉल बंद कर देती है। मिर्ज़ा उसे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये बात नसीबा अपने बंदे से पूछती है कि ये बात मिर्ज़ा को कैसे पता चली कि नसीबा उसके पास है, जो यहाँ पर तो किसी ने भी उसे नहीं बताया, तो फिर उसको कैसे ये सब कुछ पता चला। वह शमशेर से कहती है कि अपने इस बंदे से पूछा, कहीं इसने तो उसे कुछ नहीं बताया मार खाने के दौरान। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि नहीं नहीं, उसे तो पहले ही हकीकत का पता चल गया था, उसे और कौन बता सकता है, तुम्हारी नाज़ो ने बताया होगा। वैसे भी वदीमा के आगे पीछे फिरती थी, उसकी पक्की सहेली थी, जाहिर सी बात है, और मुझसे मिली भी वही थी। जिस पर नसीबन उसे कहती है कि हाँ उसने ही बताया होगा। वो उसे पूछने के लिए जाने लगती है, लेकिन शमशेर उसे कहता है कि तुम कहाँ उससे पूछ सकोगी, अपने इस नौकर को भेजो, तुमने इसको किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इतना मार कर गया है वो सलार, इसको भेजो, हो सकता है कि अपनी भड़ास उस पर निकाल ले। जिस पर नसीबन उसे इशारा करती है कि जाओ और उसको जाकर मारो। वो जैसे ही नसीबों के पास पहुंचता है, नसीबो उसको कमरे में देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसकी बगैर कोई बात सुने उसको मारना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी बाजू तक तोड़ देता है। वो बेड पर मरे हुए मुर्दों की तरह लेटी होती है। जब शमशेर उसके पास जाता है और उसकी हालत देखकर उसे कहता है कि बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तरस आ रहा है। जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो अफसोस हो गई, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है मुझे मारकर। जिस पर शमशेर उसे कहता है कि तो तुमसे किसने कहा था कि सरफराज सलार को तुम ये बताओ कि उसकी बीवी यहाँ से होकर गई है और उसने मिर्ज़ा को बेच दी है, तुम्हारी बीवी। जिस पर नसीबो से कहती है कि देखो तुम अपनी उल्टी गलती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि एक ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो तुम्हें तुम्हारे